We begin with all the major developments on the Kanpur Lamborghini case. That's our top focus. Now, the police commissioner has taken strict action against negligence within the police force. The station house officer of Agwalatoli police station has been placed on line duty after lapses were found in handling the case. The police commissioner has made it clear that a fair investigation is underway and that negligence at any level will not be tolerated. That's the latest big update breaking here on News 9 after a high-speed Lamborghini crash in Kanpur sparked a civic storm, raising not just road safety concerns but also putting a spotlight on a powerful tobacco business family linked to the incident and how the rich get away with heinous crimes. The Kanpur road accident has pushed the Banchidar Tobacco Group and its director Shivam Mishra back into the public eye, triggering questions about wealth, luxury and influence. Police action is intensifying in the case, and the Kanpur police have reached the residence of tobacco tycoon's son Shivam Mishra, the man at the center of the high-speed crash that left 6 people injured. The police have registered an FIR against Shivam Mishra. According to investigators, he was behind the wheel when the Lamborghini rammed into at least 6 pedestrians. The Kanpur police commissioner confirmed the details during a press briefing. Meanwhile, the cop who had registered the FIR against unknown persons has been attached to the police headquarters pending police actions. But there is still no update as to what happened to Shivam Mishra. Sources say that following the accident, Shivam Mishra allegedly suffered a minor heart attack and was rushed to hospital for treatment. The claim has been made by one of his bouncers. The Banchidar Tobacco Group is a long-standing name in India's tobacco and pan masala industry. Founded nearly 9 decades ago, the company supplies raw materials and manufacturing support to major brands across the country. From Uttar Pradesh to Delhi, Gujarat and Mumbai, the group has built a wide supply network and is considered a mid to large player in the domestic market with a strong focus on manufacturing, logistics and distribution. Uttar Pradesh's Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has said that if the accident was committed, strict action will be taken against those responsible regardless of status. Police have confirmed that the luxury car has been seized and all the injured were provided primary medical treatment. However, no arrests have been made so far. एक्सीडेंट की धाराएं हैं, उनके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो गाड़ी थी उनकी लैम्बोर्गिनी, उसको सीज कर दिया गया है। विवेचना में ये पता लगा है कि जो लड़का चालक है वो शिवम मिश्रा है। उनके पिताजी के मिश्रा हैं, ये दिल्ली में रहते हैं और वो लड़का गाड़ी चला रहा था। उसके साथ में पीछे बाउंसर थी और दूसरी BMW गाड़ी में। उन लड़कों ने, जब वो एक्सीडेंट हो गया था तो वो लड़का बाहर नहीं निकल पा रहा था। संभवतः शॉक लग गया है, जिसकी अभी और आगे की जानकारी की जाएगी और उनको निकाल करके वो लड़कों ने निकाला जो बाउंसर थे। पुलिस ने मौके पे जाकर के गाड़ी को ले आए, थाने में FIR करा दी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो दुर्घटना जानबूझ करके करेगा तो मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। क्या पूरा मामला है मेरे संज्ञान में नहीं। मैं केवल आपके सवाल के जवाब में इतना ही कह सकता हूं कि जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम करेगी। And now we have my colleague Abhijit Thakur joining us with the latest. Abhijit जी बताइए लेटेस्ट तमाम खबरें जो निकल रहे हैं कानपुर से। देखिए, पिछले 24 घंटे में इस पूरे मामले में बहुत ही ड्रामेटिक टर्न्स हुए हैं। सबसे पहले पुलिस को ये पता नहीं होता है कि गाड़ी किसकी है और गाड़ी चला कौन रहा होता है, तो अननोन के खिलाफ FIR दर्ज होती है। लेकिन तमाम वीडियोस सामने आने के बाद और तमाम गवाह जब सामने आकर बोलते हैं कि गाड़ी शिवम मिश्रा नाम का शख्स ही चला रहा था, उन लोगों ने देखा है, वीडियोज सामने आते हैं, उसके बाद पुलिस इसको संज्ञान लेते हुए FIR में तब्दीली करते हुए शिवम मिश्रा का भी नाम उस FIR में दर्ज करती है। दोपहर के बाद ये जानकारी सामने आती है और उसके बाद अब जो
जानकारी सामने आ रही है ब्रेकिंग, वो ये कि जो पुलिस स्टेशन के एसएचओ हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, यानी कि उनको एसएचओ पद से वहां से हटा दिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। यही काम पहले भी हो सकता था, लेकिन अब जब तमाम वीडियोस सामने आई और ये खबर मीडिया में चलने के बाद अब ये खबर का असर ये है कि पुलिस पर भी कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई इसमें करने की बात खुद कमिश्नर आकर सामने कह रहे हैं। सबसे पहले जब ये घटना हुई थी तो इस बात से ही इनकार किया जा रहा था कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहे थे या नहीं, और उसके बाद भी आज की ताज़ा अपडेट हम आपको अगर दें तो जब आईओ पहुंचते हैं शिवम मिश्रा के घर पर पूछताछ करने के लिए तो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। तस्वीरें सामने आई हैं बाकायदा और उसमें उनके बयान है जो आईओ हैं उनके कि दरवाज़ा नहीं खोला गया है, वो अपने अधिकारियों को इसके बारे में सूचना देंगे। उसके बाद वकीलों की एक टीम पहुंचती है शिवम मिश्रा के घर पे, उनके लिए गेट खुलता है, बाकायदा वकील अंदर जाते हैं, कुछ बातचीत करके बाहर निकलते हैं। उसके बाद वकील बयान देते हैं कि गाड़ी तो शिवम मिश्रा चला ही नहीं रहे थे, मोहन नाम का ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। अब ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि तमाम वीडियो एविडेंस मौजूद है जिसमें बाउंसर्स उनको उस गाड़ी से निकाल कर एक सुरक्षित दूसरे एसयूवी में बिठाते हैं और उसके बाद मौके से उनको रवाना कर देते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि वो जो वकील हैं उनके, जो शिवम मिश्रा के पक्ष से वकील सामने आए, मीडिया में बातचीत की, बयान दिया उनका कहना है कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला ही नहीं रहे थे। तो अब देखना होगा कि पुलिस ने तो शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में दर्ज कर दिया गया है, आगे उनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से बढ़ती है। जहां तक पक्ष है शिवम मिश्रा जो कि के मिश्रा के बेटे हैं, उनकी तरफ से ये पक्ष सामने आया है कि शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहे थे, गाड़ी एक ड्राइवर चला रहा था। लेकिन बाउंसर्स क्या ड्राइवर को रेस्क्यू कर रहे थे या शिवम मिश्रा को रेस्क्यू कर रहे थे? तस्वीरें तो यही बताती है कि शिवम मिश्रा को रेस्क्यू कर रहे थे वो तमाम जो उनके बाउंसर्स थे वो, और उनको सुरक्षित वहां से लेकर गए। पुलिस ने भी अपने स्टेटमेंट में ये बात मानी है कि शिवम मिश्रा ही उस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। सैकड़ों लोग जो इस घटना के बाद मौके पर एकत्रित हुए, उन्होंने अपने मोबाइल फोन से वीडियोस बनाए हैं, तमाम वीडियोस में वो दिखाई देते हैं। तो इन तमाम सबूतों के बावजूद भी अगर ये पक्ष रखा जा रहा है तो किस तरीके से आगे न्यायालय में इसको प्रोसीड करेंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी, और पुलिस की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि उनकी तरफ से जो लैप्सेस है, उनकी तरफ से जो नेग्लिजेंस है, स्टेशन हाउस ऑफिसर का वो जो जिन्हें लाइन ड्यूटी पे प्लेस किया गया है, ये भी काफ़ी कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से। जी, निश्चित तौर पर तमाम वीडियोस सामने आने के बाद, एविडेंसेस सामने आने के बाद इसमें पुलिस के जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कमियां निश्चित तौर पर सामने आ रही थी। और ये पुलिस कमिश्नर के द्वारा कहीं ना कहीं ये जो लाइन हाजिर किया गया है एसएचओ को, ये जो एक्शन उनके अगेंस्ट लिया गया है, एसएचओ को अपने पद से हटाया गया है, तो ये हटाने का जो एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक एक्नॉलेजमेंट है कि पुलिस की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन थी उसमें खामियां थी। अगर एक स्कूटी का भी एक्सीडेंट होता है तो 2 मिनट लगते हैं पुलिस को ये पता करने में कि वो उसका मालिक कौन था या फिर किसके द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी लैम्बोर्गिनी जो 10 करोड़ की लग्जरी कार थी, हाई स्पीड कार थी, उससे एक बंदा एक्सीडेंट करता है और पुलिस को मौके पर पहुंचने के बाद उस गाड़ी के ओनर का नाम पता नहीं चलता। ये हैरान कर देने वाली घटना जरूर थी। और इसी को संज्ञान में लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने खुद अब स्टेटमेंट दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जाँच होगी। हालांकि उनके बयान में ये भी कहा गया है कि शिवम मिश्रा की तरफ से कोई बीमारी की बात कही गई है कि जिस वक्त वो ड्राइव कर रहे थे उनको अचानक से कोई अटैक माइनर पड़ा जिसकी वजह से वो गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सके। लेकिन इसमें भी बहुत ही गंभीर सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यदि वो गाड़ी चलाने के लिए फिट नहीं थे तो फिर इतनी हाई स्पीड कार को वो कानपुर के शहर में लेकर निकले ही क्यों थे अपने बाउंसर की टीम के साथ। तो ये इस तरीके के बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह में इतनी बड़ी और हाई स्पीड कार को चलाकर जाना ये बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी, ये बात भी मानी गई है क्योंकि आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए। गनीमत है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं इसमें कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो फिर इसका जवाबदेह कौन होता है। यदि आप गाड़ी चलाने के लिए फिट नहीं है और जो स्थानीय लोग वहाँ के कह रहे हैं कि आसपास की उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो नशे की हालत में था, उनको बाउंसर्स उठा के जिस तरीके से ले गए ऐसा लग रहा था कि वो अपने नियंत्रण में नहीं थे। तो इन तमाम तथ्यों की जाँच हालांकि फिलहाल होनी है। जिस वक्त ये घटना हुई 3:15 बजे के आसपास रविवार के दिन दोपहर में, तब वो घटनास्थल से उनके बाउंसर्स ने उनको रेस्क्यू करके तुरंत चलता कर दिया। यदि वो मौके पर मौजूद होते, पुलिस उन्हें पकड़ती तो शायद वहां पर तत्काल उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता और मेडिकल एग्जामिनेशन में इस बात की पुष्टि हो पाती कि क्या नशे की हालत में वो गाड़ी चला रहे थे या फिर वाकई उन्हें कोई किसी तरीके का अटैक पड़ा था जिसके कारण वो गाड़ी से अपना कंट्रोल जो है वो नहीं रख पाए और ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन फिलहाल अब इन तमाम चीज़ों पर सवाल है, पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और देखना होगा कि आगे इसमें क्या नतीजे निकलते हैं क्योंकि पुलिस को तो अभी तक शिवम मिश्रा के घर में एंट्री ही नहीं मिली है।
Fair enough. We'll leave it at that. Abhijit Thakur, thank you so much for joining us with that update.